ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਧਰਮ ਸੁਧਾਰ ਅੰਦੋਲਨ। ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1517 ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਸੁਧਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਰੀਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਮਾਰਟਿਨ ਲੂਥਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਸਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਆਗੂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਸੁਧਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ। ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟਿਜ਼ਮ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਧਰਮ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮਾਰਟਿਨ ਲੂਥਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਆਗੂ ਸੀ? ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨੇਤਾ ਸੀ ਜ਼ਵਿੰਗਲੀ। ਜ਼ਵਿੰਗਲੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ 67 ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਤਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਜ਼ਵਿੰਗਲੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ 67 ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸੀ, 67 ਥੀਸਿਸ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਮਾਰਟਿਨ ਲੂਥਰ ਨੇ 95 ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਵਿਟਨਬਰਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਗਿਰਜਾਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪੋਪ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 67 ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜ਼ਵਿੰਗਲੀ ਨੇ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਇਸਨੇ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫਰਾਂਸ। ਤਾਂ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੌਨ ਕੈਲਵਿਨ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ ਦ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ ਦ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਰਿਲੀਜਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ ਜੌਨ ਕੈਲਵਿਨ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕਾਪੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੱਚੋਂ ਵਿਕ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੜੀ ਪੋਪੂਲਰ ਹੋਈ ਕਿਤਾਬ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਪੋਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਚਰਚ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ? ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਧਰਮ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਜ਼ਵਿੰਗਲੀ ਨੇ, ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਜੌਨ ਕੈਲਵਿਨ ਨੇ ਔਰ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਨ ਨੌਕਸ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਜ਼ਵਿੰਗਲੀ, ਫਰਾਂਸ ਜੌਨ ਕੈਲਵਿਨ ਔਰ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਜੌਨ ਨੌਕਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਕਿਸ ਦਾ? ਧਰਮ ਸੁਧਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਨਰੀ 8ਵੇਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਧਰਮ ਸੁਧਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸਿਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੱਚੋ ਜੌਨ ਵਾਈਕਲਿਫ ਨੂੰ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਸੁਧਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿਤਾਰਾ ਉਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮ ਸੁਧਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ? ਜੌਨ ਵਾਈਕਲਿਫ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ? ਹੈਨਰੀ 8ਵਾਂ। ਹੈਨਰੀ 8ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀ ਕੈਥਰੀਨ। ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਸੀ ਐਨੀ ਬੋਲੀਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਕੇ ਦੂਸਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੈਨਰੀ 8ਵਾਂ ਇਹ ਬੇਟੇ ਦੀ ਚਾਹ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਆਪਦੇ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੈਥਰੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਉਹ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਕੇ
अपनी प्रेमिका एनी बोलाइन नाल जिहड़ा वो विआह करवाना चाहता सी। इस दे लई इसनूं किस दे कोलों इजाजत लैनी पैनी सी? पोप दे कोलों। तां पोप ने इस गल दी इसनूं इजाजत नहीं दित्ती हैनरी 8वें नूं बच्चो। तां हैनरी 8वां जिहड़ा वो पोप दे की हो गया? खिलाफ हो गया, कैथोलिक चर्च दे खिलाफ हो गया। इसने सारा जिहड़ी धनराशि पोप नूं और कैथोलिक चर्च नूं जांदी सी उसनूं बंद कर दिता और खुद जिहड़ा अपना कंट्रोल कर लिया किस दे उपर? सारे चर्च दे उपर। और इसने अपनी एक अलग चर्च शुरू की पोप दे प्रभाव तो अलग, एंग्लिकन चर्च। और इसने पोप दे खिलाफ जिहड़ा वो पास किया प्रभुत्व दा कानून। एंग्लिकन चर्च इसने बना ली और प्रभुत्व दा कानून पास किया किस दे खिलाफ? पोप दे खिलाफ। तो ये पोप दे खिलाफ हो गया। और एंग्लिकन चर्च एक कैथोलिक चर्च तो अलग इसने एंग्लिकन चर्च बनाई प्रोटेस्ट धर्म नूं अगे ले जाने वास्ते। और प्रभुत्व दा कानून इसने पास किया किस दे खिलाफ? पोप दे खिलाफ, क्योंकि इसने इजाजत नहीं दी सी इसनूं अपनी पत्नी तो तलाक लैके अपनी प्रेमिका नाल शादी करवाने वास्ते। तो हुण इसने प्रभुत्व दा कानून पास किया, फिर एंग्लिकन चर्च लिआंदी और 1547 दे विच इसदी जिहड़ी है वो मौत हो जाती है हैनरी 8वें दी। तो उस तो बाद इंग्लैंड दे विच इसदा बेटा एडवर्ड 6वां ये राजा बनता है। तो ये इस धर्म नूं दोबारा स्थापित करता है। उस तो बाद रानी मेरी, जिसनों की खूनी मेरी भी कहा जाता है, इसने 1553 तो लैके 1558 ईस्वी तक अपने राज दे विच हज़ारां प्रोटेस्टां नूं जिहड़ा वो खून दे घाट उतार दिता, उन्होंने मरवा दिता। लोग प्रोटेस्ट जिहड़े सी कैथोलिक चर्च के खिलाफ सी, जिहड़े प्रोटेस्टेंट्स वो डर के इंग्लैंड नूं छड्ड के दूजे देशों में चले गए। इस करके इसनूं की कहा जाता है? खूनी मेरी भी कहा जाता है बच्चों। रानी मेरी जिहड़ी कि एडवर्ड 8वें की बेटी सी, तो ये जो रानी बनती है इंग्लैंड की 5 सालों के अपने शासन के हज़ारां प्रोटेस्टां नूं जिहड़ा मरवा दिंदी है। दोबारा एक कैथोलिक चर्च नूं अगे लैके आना चाहती है, इस करके इसनूं रानी मेरी नूं खूनी मेरी भी कहा जाता है। इस तो बाद एलिजाबैथ रानी बनती है 1558 तो 1603 तक। तो ये दोबारा एंग्लिकन रिलीजन नूं जिहड़ा वो इंग्लैंड का राज धर्म बना दिंदी है। एंग्लिकन रिलीजन नूं दोबारा राज धर्म अनाउंस कर देंदी है, सैकुलरिज्म की गल करती है। और एलिजाबैथ के टाइम के प्रोटेस्टेंट्स जिहड़े ने वो वापस माइग्रेट होकर इंग्लैंड में आने शुरू हो जाते हैं अलग अलग देशों तो उन्होंने लगता भी हुण असीं इंग्लैंड दे विच सेफ रहांगे। तो दोबारा फिर जिहड़ी है वो प्रोटेस्ट धर्म की शुरुआत होनी शुरू हो जाती है बच्चों इंग्लैंड की एलिजाबैथ क्वीन तो बाद। तो हुण अगे गल करते हैं जदों ये सारी चीज़ां पोप और उसके चेले उसके जिहड़े फॉलोअर्स ने पोप नूं मनण वाले पोप जिसका कि जिहड़ा घर है वो वैटिकन दे विच है, रोम दे विच, वैटिकन सिटी दे विच। तां वो दोबारा तो अपने धर्म नूं अगे लियाण वास्ते यानी कि कैथोलिक धर्म नूं अगे लियाण वास्ते कैथोलिक चर्च दे जिहड़े उस दे विच सुधार करते हैं बच्चों। तो हुण काउंटर रीफॉर्मेशन शुरू हो जाती है, विरोधी धर्म सुधार अंदोलन। तो जो ये चीज़ां देखते हैं वो तो विरोधी धर्म सुधार अंदोलन तो काउंटर रीफॉर्मेशन लैके आते हैं यानी कि एक तो वो कहते चर्च विच सुधार करना चाहते हैं, चर्च सुधार ते पोप की जिहड़ी
प्रतिष्ठा है उसनू वापस लैके आना चाहते हैं। तो इन्हां चीज़ों नू लैके वो काउंटर रिफॉर्मेशन चलाते हैं। पोप और उसके सहयोगी उसके चेले दोबारा कैथोलिक धर्म नू अगे लैके आने वास्ते चर्च सुधार करना चाहते हैं। पोप की जी खोई हुई प्रतिष्ठा सी उसनू वापस लैके आना चाहते हैं। तो उसलिए कुछ 3 काम वो करते हैं। पहला ट्रेंट काउंसिल, सब तो पहला काम होंदा है ट्रेंट काउंसिल, जिहड़ी कि इटली दे ट्रेंट नामक स्थान ते शुरू होंदी है 1545 तो लैके 1563 ईस्वी तक चलती है। तो ये चर्च दे विच जिहड़े ने सुधार करन दे नियम बनाते हैं। इन्हां सालां दे विच 1545 तो लैके 1563 इटली दे ट्रेंट शहर दे विच एक काउंसिल होंदी है। तो इस दे विच चर्च नूं सुधार करने वास्ते, चर्च विच सुधार करने वास्ते, पोप की प्रतिष्ठा नूं अगे लियाउण वास्ते जिहड़ा वो शुरुआत की जाती है। तो बनाए जाते नियम बनाए जाते हैं भी इन्हां नियमां नूं आपां फॉलो करांगे तां जो चर्च विच सुधार लियाया जा सके। दूसरी गल सोसाइटी ऑफ जीजस, इस दी स्थापना की जाती है इग्नेशियस लोयला द्वारा। ये स्पेन का रहने वाला होंदा है एक सैनिक जिहड़ा कि पोप तो आशीर्वाद लैके इस सोसाइटी की स्थापना करता है। इग्नेशियस लोयला स्पेन का रहने वाला सी और एक उत्थों का सैनिक होंदा है। तो ये पोप तो आशीर्वाद लैके सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना करता है। इस दे 2 चेले होंदे ने, ज्यूसिट्स और एस.टी. फ्रांसिस। एस.टी. फ्रांसिस है जिहड़ा वो इंडिया अते जापान दे विच इसनू जिम्मेदारी दी जाती है और ज्यूसिट्स नू अमेरिका ते एशिया दे विच क्रिश्चियन धर्म फैलाने की जिम्मेवारी सौंपी जाती है। इग्नेशियस लोयला जिहड़ा कि स्पेन का रहने वाला सी जिसने कि सोसाइटी ऑफ जीजस की स्थापना की। तो उसके अगों 2 चेले होंदे ने, एस.टी. फ्रांसिस जिसनों कि इंडिया और जापान दे विच क्रिश्चियन धर्म फैलाने की दी जाती जिम्मेवारी और ज्यूसिट्स नू अमेरिका और एशिया दे विच क्रिश्चियन धर्म फैलाने की जिम्मेवारी दी जाती तां जो पोप और चर्च की जिहड़ी दिख है उसनू वधिया बनाया जा सके। तीसरा काम इनक्विजिशन, ये एक धार्मिक संस्था होंदी है, धार्मिक अदालत कह लो, जिस दे विच 6 मैंबर दिते जाते हैं और इसका पोप पॉल तीसरा। तो ये 1542 ईस्वी विच इसनू दोबारा जीवित करता है। इक्विजिशन एक तरह की धार्मिक अदालत होंदी है बच्चों, जिस दी स्थापना 1248 दे विच हो चुकी होंदी है, पर इसनू दोबारा पुनर्जीवित किया जाता है 1542 दे विच। किस दे द्वारा? पोप पॉल तीसरे दे द्वारा, जिस दे विच 6 मैंबर होंदे ने। यानी कि वो धर्म के खिलाफ अगर कोई भी व्यक्ति धर्म के खिलाफ बोलता है, पाया जाता है, उसके खिलाफ सबूत मिलते हैं तो उसनू वो सख्त से सख्त सज़ा सुनाते सी, देश निकाला भी देंदे सी। तो इस तरह के काम जिहड़े ने कीते जांदे ने इस धार्मिक अदालत के वल्लों। तो हौली हौली जिहड़ा वो वापस जिहड़ा सुधार शुरू हो जाता है और पूरे यूरोप के दोबारा तो फिर एक बार फिर कैथोलिक चर्च, कैथोलिक धर्म जिहड़ा वो प्रफुल्लित होने लग जाता है और प्रोटेस्ट धर्म है जिहड़ा वो लगभग खत्म होना शुरू हो जाता है बच्चों। तो ये सी अपना अज का टॉपिक, दूसरा भाग धर्म सुधार अंदोलन का, जिसनू चलाने वास्ते धर्म सुधार अंदोलन नू प्रोटेस्ट धर्म नू खत्म करने वास्ते, कैथोलिक धर्म नू दोबारा लियाने वास्ते काउंटर रिफॉर्मेशन लियाई जाती है, सोसाइटी ऑफ जीजस और इक्विजिशन की स्थापना की जाती है। तो ये सारा कुछ दोबारा तो और यूरोप दे विच फिर तो किहड़ा धर्म आ जाता है?
ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਧਰਮ, ਕੈਥੋਲਿਕ ਧਰਮ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ, ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ ਕਿਸ ਦਾ, ਧਰਮ ਸੁਧਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ। ਓਕੇ ਬੱਚੋ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ।